کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا وزیر کے بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک روز پڑھائی میں مصروف تھے کہ اچانک شہزادہ وزیر زادے سے کہنے لگا، اگر ہم پڑھتے پڑھتے یہیں سو گئے تو ہم میں سے جو پہلے اٹھے وہ دوسرے کو بھی جگا دے۔ پڑھتے پڑھتے آخر کار وہ دونوں لڑکے سو گئے۔ دوسرے روز وزیر زادے کی آنکھ پہلے کھل گئی اور اس نے وعدے کے مطابق شہزادے کو بھی جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی شہزادے نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وزیر زادہ گھبرا گیا اور اس نے شہزادے سے رونے کا سبب جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی نہ بولا اور اس کے رونے کی آواز سن کر ملکہ بھی آ گئی۔ اس نے بھی پوچھا، مگر شہزادہ تب بھی کچھ نہ بولا۔ بادشاہ نے بھی لاکھ کوشش کی مگر شہزادہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس نے وزیر زادے کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وزیر زادہ رات کو شہزادے کے کمرے میں سویا تھا اور اسی نے شہزادے کو کوئی ایسی بات کہی ہے جس کی وجہ سے شہزادے کو مسلسل چپ لگ گئی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جس روز وزیر زادے کو پھانسی دی جانی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے نزدیک بہت سے لوگ جمع تھے، جبکہ ایک طرف بادشاہ اور شہزادے سمیت وزیر بیٹھے تھے۔ جب جلاد اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لے گئے تو شہزادے نے اپنی چپ توڑ ڈالی۔ اس نے کہا، اسے کچھ مت کہے، اس نے نہ تو مجھے کچھ ایسی ویسی بات کہی ہے اور نہ ہی مارا ہے۔ کچھ دن پہلے رات سونے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اٹھے گا وہ دوسرے کو جگا دے گا۔ چونکہ اس کی آنکھ پہلے کھل گئی تو اس نے وعدے کے مطابق مجھے بھی جگا دیا۔ جس لمحے اس نے مجھے جگایا اس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا۔ میرا خواب اس قدر حسین اور حقیقی تھا کہ اس کے ٹوٹنے سے مجھے بہت صدمہ پہنچا اور یہی دکھ ہے جو مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب خواب سننے کی فرمائش کی تو شہزادہ بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں کی ہر چیز سبز ہے اور شہر کے وسط میں ایک سبز دریا بہہ رہا ہے۔ اس سبز دریا کے کنارے ایک سبز رنگ کا محل ہے جہاں ایک سبز پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ وہ سبز پری اس قدر حسین تھی کہ میں پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اس سے یہی بات کہنے لگا ہی تھا کہ وزیر زادے نے مجھے جگا دیا اور اس سبز پری نے مجھ پر جادو سچ کر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں سبز پری کو حاصل نہ کر لوں۔ لگتا ہے اب کبھی بھی میں سکھی نہیں رہ پاؤں گا۔ خواب سننے کے بعد بادشاہ نے فوراً وزیر زادے کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ہی وہ شہزادے کے خواب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ کسی بھی باپ کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا۔ اس پریشانی میں اس نے شہزادے سے کہا، یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ اب ہم کیا جانے کہ وہ سبز شہر کہاں ہے جس کے وسط میں سبز دریا بہتا ہے۔ سبز دریا کے کنارے سبز محل ہے۔ سبز محل کہاں ہے جہاں سبز پری رہتی ہے؟ اسے ہم بھلا کہاں تلاش کریں گے؟ شہزادہ بولا، خواب میں نے دیکھا ہے، لہٰذا سبز پری کی تلاش بھی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے سبز پری کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ تو پہلے ہی پریشان تھا، اب شہزادے کی روانگی کا سوچ کر گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے کو مختلف ہیلو بہانوں سے روکنے کی کوشش کی، مگر شہزادے کے دل و دماغ پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا۔ آخر بادشاہ کو ہار ماننا پڑی۔ شہزادے کے جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو استبل کا سب سے تیز رفتار گھوڑا دیا جائے۔ شہزادہ کئی دن اور راتیں مسلسل سفر میں رہا۔ آخر کار ایک خانقاہ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا روک لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اسے وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ بھی وہاں پہنچے۔ کتنی ہی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر بزرگ بولے، نوجوان، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ شہزادے نے اپنا خواب سنایا اور کہا کہ اب وہ اس سبز پری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سو گیا تو بزرگ نے اپنے سامان سے مخصوص قسم کے کھڑاوے یعنی لکڑی کے جوتے نکالے، انہیں اپنے پاؤں میں ڈالا اور کہا،
चल चल खड़ावे चल, इस सब्ज शहर में चल। अगले ही लम्हे वो बुजुर्ग सब्ज शहर में खड़े थे। उन्होंने फिर कहा, चल चल खड़ावे चल, इस सब्ज दरिया को चल। आग झपकने से पहले वो सब्ज दरिया के किनारे खड़े थे। कुछ देर उन्होंने उस दरिया का नजारा किया और फिर बोले, चल चल खड़ावे चल, इस सब्ज महल में चल। अब वो सब्ज महल में खड़े थे। वहां पहुंचकर उन्होंने महल के सभी कमरों में झांका। आखिरकार एक कमरे में उन्हें सब्ज परी मिल गई, जो अपने बिस्तर पर सो रही थी। परी को देखकर पहले तो बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर बोले, चल चल खड़ावे चल, अब खानका को चल। खानका वापस पहुंचकर बुजुर्ग सो गए और सुबह इस बात का जिक्र शहजादे से भी नहीं किया। दूसरी रात वो बुजुर्ग फिर सब्ज महल में गए, वहाँ का दोबारा जायजा लिया। इसी तरह 3 रोज बीत गए। वो हर रात सब्ज महल में पहुँच जाते और वहाँ का जायजा लेकर वापस लौट आते। अब वो सब्ज महल और वहाँ के वकीलों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुके थे। चौथे रोज बुजुर्ग ने शहजादे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, सब्ज परी को तो मैंने तलाश कर लिया है, मेरी मानो तो उसे भूल जाओ, क्योंकि उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। वो जिन्नात के कब्जे में है। मगर शहजादा सब्ज परी को हासिल करने की जिद पर अड़ा रहा। उसने बुजुर्ग से कहा, खुदा के लिए मुझे आप सब्ज महल में छोड़ आएं। अगर खुदा की मर्जी होगी तो मैं उसे हासिल कर लूंगा, और अगर खुदा ने जिंदगी इतनी ही लिखी है तो ये मेरा मुकद्दर। शहजादे की बात सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए और शहजादे को अपनी एक खड़ाव दी और दूसरी खुद पहनकर बोले, चल चल खड़ावे चल, इस सब शहर में चल। शहजादे को बुजुर्ग ये कह चुके थे कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। शहजादे ने आंखें बंद की हुई थी। अगले ही लम्हे बुजुर्ग ने आहिस्ता से शहजादे को आंखें खोलने को कहा। शहजादे ने हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ आंखें जो खोली तो खुद को एक ऐसे शहर में पाया जहां हर शय सब्ज थी। शहजादे की हालत देखकर बुजुर्ग मुस्कुराए। सब्ज शहर देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने फिर खड़ाओं को हुक्म दिया, चल चल खड़ावे, इस सब्ज दरिया को चल। अब जो शहजादे ने आंखें खोली तो वो सब्ज दरिया के किनारे पहुंच गए। कुछ देर तो वो दोनों सब्ज दरिया के किनारे घूमते रहे। इसके बाद बुजुर्ग ने कहा, चल चल खड़ावे चल, इस सब्ज महल में चल। सब्ज महल का सुनकर तो शहजादे की हालत गैर होने लगी। अब वो फौरन से पहले सब्ज परी को एक नजर देखना चाहता था। इसी लम्हे वो सब्ज महल में पहुंच गए और बुजुर्ग शहजादे को इस कमरे की तरफ ले गए जहां सब्ज परी कैद थी। शहजादे ने दरवाजे की ओर से कमरे में झांका तो सामने सब्ज परी का चेहरा नजर आया। सब्ज परी बीन बजा रही थी, मगर इसकी गोद में एक हैबतनाक देव सर रखे सो रहा था। ये देखकर शहजादा घबरा गया। बुजुर्ग ने उसे आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें मना करता रहा, मगर तुम जिद लगा बैठे थे। ये सुनकर शहजादे को जोश आ गया और वो सब्ज परी के सामने चला गया। सब्ज परी ने उसे जो देखा तो हैरान रह गई। ऐसे खूबसूरत खूबरू शहजादे को उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था। सब्ज परी को शर्माता हुआ देखकर शहजादे के हौसले बुलंद हो गए और उसने सब्ज परी से कहा, जिस रोज से मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा है उसी रोज से तुम्हारी तलाश में भटक रहा हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सब्ज परी तो शहजादे को देखते ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने इस्बात में अपना सर हिलाया और फिर देव की तरफ घबरा कर इशारों से शहजादे को बताया, जब तक ये बीन बजती रहेगी देव भी सोता रहेगा। अगर बीन बजना बंद हो गई तो देव जाग उठेगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शहजादे ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, तुम मुझे ये बीन दे दो, मैं इसे बजाता हूँ और तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, मैं इस देव से निपट लूंगा। ये सुनकर सब्ज परी को यकीन हो गया कि जो मेरी खातिर इस देव से लड़ने के लिए तैयार है वो वाकई मुझे चाहता है। मगर सब्ज परी इतनी संगदिल नहीं थी कि शहजादे को मुसीबत में डालकर खुद बाहर चली जाती। शहजादा इससे बीन लेना चाहता था कि बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, ये बीन मुझे दे दो, इसे मैं बजाता हूँ और तुम सब्ज परी को लेकर यहाँ से निकल चलो, मैं भी कुछ देर बाद खानका में पहुँच जाऊंगा। शहजादा भी खुद गर्ज ना था। उसने जवाब दिया, ए बुजुर्ग, आपके मुझ पर पहले ही इतने एहसानात हैं, मैं आपको मुसीबत में डालकर कैसे जा सकता हूँ? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मालूम है मेरे पास खुदा की करामत का तोहफा है, मैं इस देव के काबू में नहीं आऊंगा।
शहजादे को इत्मीनान हुआ कि वो बुजुर्ग की करामात देख चुका था। शहजादे को राजी करने के बाद बुजुर्ग ने कहा, तुम मेरी एक खड़ाऊ ले लो और दोनों अपना अपना पाँव इसमें फंसा लो। ये खड़ाऊ तुम्हें खानकाह ले जाएगी। सब्ज परी बोली, ए बुजुर्ग, मैं तो खुद उड़कर जा सकती हूँ और शहजादे को भी अपने साथ खानकाह ले जाऊंगी। बुजुर्ग ने सब्ज परी को खानकाह का रास्ता समझाया और कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। शहजादे ने बीन बुजुर्ग के हाथों में थमा दी और सब्ज परी के साथ इस महल से निकल आया। कुछ देर बाद बीन बजाने के बाद बुजुर्ग ने अपने पाँव में खड़ावे डाल ली और बीन को फर्श पर फेंक कर बोले, चल चल खड़ावे चल, इस खानकाह में चल। दूसरे ही लम्हे बुजुर्ग खानकाह में पहुंच गए। बुजुर्ग को देखकर शहजादा और सब्ज परी बहुत खुश हुए। कुछ रोज बुजुर्ग के पास ठहरने के बाद शहजादा सब्ज परी को लेकर अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सब्ज परी शहजादे से कहने लगी, मैं तुम्हारे वतन जा तो रही हूँ, मगर मेरी एक शर्त भी है। जब शहजादे ने शर्त के बारे में पूछा तो सब्ज परी ने कहा, शर्त ये है कि पहले तुम अपने शहर से बाहर एक महल तामीर करवाओ जो सिर्फ हम दोनों के लिए होगा। तुम्हारे खानदान के किसी फर्द को इस महल में आने की इजाजत नहीं होगी। शहजादे ने सब्ज परी की ये शर्त मान ली और सब्ज परी को बताया कि उसके दादा ने एक महल शहर से बाहर बनवाया था, हम दोनों उसी में रहेंगे। जब दोनों शहर के नजदीक पहुंचे तो पहरेदारों ने शहजादे के घोड़े को पहचान लिया। शहजादे ने पहरेदारों से कहा, बादशाह सलामत को इत्ला कर दो कि हम दोनों शहर से बाहर वाले महल में ठहरेंगे, हमें मिलने कोई ना आए। मैं खुद आराम करने के बाद बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह को पैगाम भिजवा दिया गया और शहजादा सब्ज परी के हमरा शहर से बाहर महल में चला गया। दूसरे रोज शहजादे ने अकेले ही बादशाह के हुजूर हाजिरी दी और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। बादशाह को तो सिर्फ शहजादे की खुशी अजीज थी। वो खुश था कि उसके बेटे ने अपनी मंजिल पा ली है। बादशाह ने अपने खानदान के सभी अफराद को शहजादे के महल में ना जाने की ताकीद कर दी और शहजादा खुशी खुशी वापस सब्ज परी के पास चला गया। इस बात को अभी कुछ ही रोज गुजरे थे कि एक दिन खानदान की कुछ औरतें इकट्ठी होकर मलका के पास जा पहुंची। उन्होंने मलका से ऐसी ऐसी बातें की कि मजबूरन मलका को उन औरतों को अपने साथ लेकर शहजादे के महल में जाना पड़ गया। इन औरतों की नजर जब सब्ज परी पर पड़ी तो उन्होंने उसके हुस्न की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिए। अपनी तारीफ सुनकर सब्ज परी बोली, अभी मैं खाक खूबसूरत नजर आती हूँ, अगर आप मेरा असल रूप देखें तो बस देखती रह जाएंगी। मलका बोली, तो फिर देर किस बात की है, चल बेटी जल्दी से तैयार होकर आ जा। सब्ज परी अपने कमरे में गई और अपना असल लिबास पहनकर इन औरतों को सलाम करने आई। औरतें वाकई उसको देखती ही रह गईं। अभी सब परी के हुस्न को देखकर हैरान ही हो रहे थे कि सब्ज परी उड़कर वहां से चली गई। जब शहजादे को सब्ज परी के जाने का इल्म हुआ तो उस पर जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सब्ज परी के फराक में रो रो कर उसने अपना हाल तबाह कर लिया। एक रोज गम में निढाल वो बादशाह के पास जा पहुंचा और बोला, सब्ज परी के बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। आप मुझे इजाजत दें कि मैं दोबारा सब्ज परी की तलाश में जा सकूं। बादशाह से भी शहजादे की हालत देखी न जाती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी शहजादे को जाने की इजाजत दे दी। शहजादा सबको अलविदा कहकर फिर से सब्ज परी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई दिन के सफर के बाद वो इसी खानकाह में पहुंच गया जहां उसे बुजुर्ग मिले थे। जब शहजादा खानकाह पहुंचा तो वो बुजुर्ग अभी वहीं मौजूद थे जिन्होंने शहजादे को सब्ज परी से मिलवाया था। शहजादे ने उन्हें तमाम राम कहानी सुनाई और उनसे एक बार फिर मदद तलब की। उसकी बातें सुनकर बुजुर्ग सोच में डूब गए। कुछ देर खामोश बैठे रहने के बाद वो उठे, अपनी खड़ावी पहनकर शहजादे को फिर उसी सब्ज शहर में ले गए जहाँ सब्ज दरिया बहता था और जिसके सब्ज महल में सब्ज परी मुकीम थी। जब वो सब्ज परी के पास पहुँचे तो वो कमरे में अकेली ही थी। उसे देखते ही शहजादा उसकी तरफ लपका और बोला, शुक्र है उस जात का जिसने दोबारा मुझे तुमसे मिलवा दिया। आओ अब हम हमेशा के लिए यहाँ से चलते हैं। शहजादे ने सब्ज परी के दोनों हाथों को थाम लिया। सब्ज परी बोली,
मैं तो पहले बड़ी मुश्किल से तुम्हारे साथ चली गई थी। अब देव ने ऐसा जादू कर दिया है कि जो ही मैं इस महल से निकलूंगी तो उसे मालूम हो जाएगा। अब तो वो ज्यादा देर के लिए मुझे अकेला भी नहीं छोड़ता। वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। जब तक जीव जिंदा है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। सप्तपरी को इस बात का यकीन था कि वो मान भी गई तो भी देव ऐसा नहीं होने देगा। जब शहजादे ने सप्तपरी की बात सुनी तो उसका चेहरा मुरझा गया। बुजुर्ग भी उसके पास ही खड़े थे। उन्होंने शहजादे के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मत रो बेटा, मैं तुझे एक सफूफ की 2 पुड़िया देता हूँ, ये तेरे काम आएंगी। इन पुड़ियों को अपने पास रख ले। जब देव यहाँ आए तो तुम सुर्ख पुड़िया वाला सफूफ उसकी आंखों में डाल देना। इस तरह देव अंधा हो जाएगा। जब देव अंधा हो जाए तो तुम उससे वादा लेना कि बिनाई वापस आने पर वो सप्तपरी को रिहा कर देगा। ये जिन्नात अपने वादे का पास रखते हैं। जब वो वादा कर ले तो फिर पीली पुड़िया वाला सफूफ इसकी आंखों में डाल देना। इस तरह तुम्हारा काम हो जाएगा और देव भी कहीं और चला जाएगा। बुजुर्ग ने अभी शहजादे को पुड़िया पकड़ाई ही थी कि एक जबरदस्त शोर बुलंद हुआ और कमरे में धुआं ही धुआं फैल गया। देव आ गया है, आप जल्दी से कहीं छुप जाएं, सप्तपरी ने कहा। बुजुर्ग और शहजादा फौरन एक दरवाजे के पीछे छुप गए और सप्तपरी दूसरी तरफ होकर खड़ी हो गई। देव को महल में दाखिल होते ही इंसानों की बू आ चुकी थी और वो गुस्से में जो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके सामने सप्तपरी अकेली ही खड़ी थी। अभी वो इधर उधर देखने के लिए मुड़ने ही लगा था कि शहजादा दरवाजे की ऊंट से निकलकर उसके सामने आ गया और उछलकर उसकी आंखों में सुर्ख पुड़िया वाला सफूफ डाल दिया। जूं ही सफूफ देव की आंखों में पड़ा तो उसकी बीनाई जाती रही और वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। शहजादा उसके पास खड़ा था मगर देव तो बस अपनी बीनाई खो जाने की वजह से सर पकड़े बैठा था। शहजादे ने कहा, ए देव, मैं तुझे मारने नहीं आया, तेरी मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं। तूने एक मासूम को अपनी कैद में रखा है, इसलिए तुझे ये सजा मिली है। देव ने कहा, अगर मुझे मेरी बीनाई वापस मिल जाए तो मैं इस मासूम को छोड़ दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि दोबारा किसी को जबरदस्ती कैद नहीं करूंगा। शहजादे ने देव से वादा लिया और फिर पीली पुड़िया से सफूफ निकालकर देव की आंखों में डाल दिया। अब जो देव की बीनाई वापस मिली तो उसे सब कुछ नजर आ रहा था। उसने शहजादे और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपना जादू खत्म करने के लिए मंतर पढ़ने लगा। एकदम आंधी आ गई और घुप अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छट गया तो सब्ज महल, सब्ज दरिया, सब्ज शहर और देव सब गायब हो चुके थे, जबकि मैदान में शहजादा और बुजुर्ग और सप्तपरी खड़े थे। सप्तपरी और शहजादा खुशी से झूमने लगे। शहजादा सप्तपरी और बुजुर्ग के हमरा दोबारा इस खानका पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग को अलविदा कहा और दोनों वतन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सप्तपरी ने शहजादे से कहा कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसके खानदान के अफराद भी जब चाहे उसे देख सकते हैं। और शहजादे ने महल में पहुंचकर बहुत बड़ा जश्न रखा और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।